Hello everyone and welcome to today's class. Today we are going to talk about the sensory and perceptual abilities of the newborns. I think most of us would wonder, how does a newborn know कि उसकी माँ की स्किन सॉफ्ट है या रफ है, या फिर कैसे एक 5 साल का बच्चा ये जान लेता है कि उसके बालों का कलर क्या है, उसकी आंखों का रंग क्या है. Infants and children, they know these things as a result of information that comes through the senses. जो हमारी 5 major senses हैं, we see, we feel, we taste, we hear, we smell. So हमारे senses के माध्यम से जो भी information हमें मिलती है, through that information that we have achieved via our senses, is how we know things, is how a newborn start knowing things. Imagine without vision or hearing or the ability to touch, taste or smell, we would be isolated from the whole world. हम बिल्कुल अब संसार से कट चुके होंगे, कट जाएंगे, क्योंकि हम ना तो उससे छू पा रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना सूंघ पा रहे हैं और ना सुन पा रहे हैं. So this situation of having a tasteless, colorless life can be prevented and is being prevented through these sensory and perceptual abilities. And what's more interesting to know is किस तरीके से एक blank slate की तरह, over these last lectures that we have covered on prenatal development and neonatal development, we have sort of developed an idea that when the baby comes into this world, he is more or less a blank slate. वो कई चीज बाहरी संसार को लेकर एकदम नया है, एकदम ब्लैंक है. इस ब्लैंकनेस में कलर्स और ऑब्जेक्ट्स और सुगंध और टच के माध्यम से जितने रंग भरे जाते हैं, वो किस तरीके से एक नवजात शिशु की सेंसरी और परसेप्चुअल एबिलिटीज डेवलप होती हैं, उसके बारे में आज हम कुछ जानेंगे. Moving on to the first part, that is the concept of sensations and perceptions. Normally, we tend to use sensations and perceptions simultaneously, or as if they do belong to the same, or they do have the same meaning, but that is not so. Why? Because sensation purely हमारे senses के आधार पर जो information आई, उस information के आने तक का जो process है, that is sensation. It occurs when information interacts with sensory receptors. आप अपनी आंखों के माध्यम से एक लाल रंग को देख रहे हैं, या फिर आप आवाज जो आपके कानों में से होती हुई आपके ऑडिटरी नर्व तक पहुंचती है, तो वो आवाज पहुंची यहाँ तक. सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन को अपने सेंसेस के माध्यम से ग्रहण करना, ये प्रोसेस होता है sensation. For example, the sensation of hearing, it occurs when sound waves, they are collected by our outer ear and then they are transmitted through the inner ear, through the bones, and then they reach the auditory nerve. Now this whole process of capturing the sound waves by the ear and then those waves reaching our auditory nerve, that is the process of sensation. Or for example, the sensation of vision, which occurs as light rays which come in contact with our eyes. फिर वो रेटिना पे फोकस करती हैं और ऑप्टिक नर्व पे ट्रांसमिशन होता है, जो कि विजुअल सेंटर्स ऑफ द ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को ले जाती हैं. तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारे सामने है या जो हमारे आसपास है, वो जानकारी ग्रहण की है. उस जानकारी को ग्रहण करने का प्रोसेस इज सेंसेशन, और ये पूरी तरीके से हमारे सेंसेस पे डिपेंड करता है. व्हाट वी सी थ्रू आवर आईज, व्हाट वी स्मेल थ्रू आवर नोज, व्हाट वी टच थ्रू आवर स्किन, व्हाट वी हियर थ्रू आवर आईज, और व्हाट वी टेस्ट थ्रू आवर टंग और टेस्ट बड्स. देन व्हाट इज परसेप्शन? सेंसेशन जहां संवेदन की बात है, किसी चीज को महसूस करने की बात है, वहीं परसेप्शन अनुभव, अनुभूति या फिर समझने की बात है.
सेंसेशन जहां जानकारी को ग्रहण करने की बात है, परसेप्शन उस ग्रहण की हुई जानकारी से क्या इंटरप्रेट करते हैं आप, उस इंटरप्रिटेशन का नाम है परसेप्शन। जो साउंड वेव्स हमारे कानों के कांटेक्ट में आकर और ऑडिटरी नर्व तक पहुंचती हैं वो तो सेंसेशन है, बट फिर हम इस साउंड वेव को एक नाम देते हैं, म्यूजिक, या फिर सिंपल कोई नॉइज, कार का हॉर्न है या फिर एक सितार की आवाज है, तो दैट इज परसेप्शन, interpreting whatever information that you have attained via your sensory organs. When you see something through your eyes, via your retina and then your optic nerve, but then you perceive it as a square or a car or a cycle or a person or a black thing or a red thing, so you perceive them as colored objects or a particular size का object or a shape का object, so that is perception. जानकारी को ग्रहण करना is sensation और ग्रहण की हुई जानकारी को इंटरप्रेट करके उसको समझना is perception. So that is what sensation and perception is. Coming to the second part of our lecture today is the visual perception. So what we are going to do now, अब हम एक नवजात शिशु में किस किस किस्म के sensations और perceptions develop होते हैं उसके बारे में जानेंगे. The first perception that we are going to learn about is the visual perception, यानी हमारी देखने की क्षमता पर आधारित हमारा interpretation. देखने की क्षमता के ऊपर 3-4 कैटेगरीज आती हैं जिसमें बच्चा जन्म के पश्चात धीरे धीरे मैच्योर होता होता जो है विजुअल कैपेबिलिटीज अचीव करता है. न्यूबॉर्न बच्चे क्या देखते हैं, किस तरीके से उनका विजुअल परसेप्शन डेवलप होता है, इसको जानने के लिए हमें 2-3 चीजों को समझना जरूरी है. नंबर 1 इज विजुअल एक्विटी, कि एक इन्फेंट, एक नवजात शिशु पैदा होते ही कितना अच्छी तरीके से देख सकता है. आई एम श्योर अगर आपके परिवार में कोई नए बच्चे का जन्म हुआ होगा तो आपने अपने घर के बुजुर्गों को ये कहते सुना होगा कि अभी इनकी आंखें ढंग से सधी नहीं है, इनकी नजर सधी हुई नहीं है. वो अपनी ही भाषा में ये कहना चाह रहे हैं कि द विजुअल एक्विटी ऑफ दैट इन्फेंट इज येट टू डेवलप, बिकॉज एट बर्थ जो नर्व्स और मसल्स और जो लेंस ऑफ द आई है वो अभी भी डेवलप हो रहे हैं. दे आर स्टिल डेवलपिंग, द नर्व्स एंड द मसल्स एंड द लेंस ऑफ द आईज, दे आर स्टिल डेवलपिंग, एंड एज अ रिजल्ट न्यूबॉर्न्स कैन नॉट सी स्मॉल थिंग्स दैट आर फार अवे. बहुत दूर तक छोटी चीजें हैं वो नहीं देख पाते. एक नवजात शिशु का विजन जो है वो 20/240 का माना जाता है. 6/6 का विजन हम आमतौर पर बोलते हैं, जो एक स्नेलन चार्ट के ऊपर प्लॉट होता है उसके अनुसार हम विजुअल एक्विटी जो है वो मेजर करते हैं. तो इसी आधार पर एक नए नवजात शिशु का जो विजुअल एक्विटी है दैट इज 20/240, जिसका अर्थ ये हुआ कि एक नवजात शिशु 20 फीट पे वो चीज उस तरीके से देख पाता है जो कि एक वयस्क 240 फीट पे देख पाता है. Let me repeat myself. एक नवजात शिशु 20 फीट पे उस तरीके से देख पाता है, कोई भी चीज 20 फीट की दूरी पर उसको वैसी नजर आएगी जैसी एक वयस्क को 240 फुट पे नजर आएगी. सो इतनी वीक नजर जो है एक नवजात शिशु की होती है. 6 माह तक आते आते ये एवरेज विजन जो है 20/240 से सुधरकर 20/40 हो जाती है. यानी अब एक 6 माह के बच्चे को 20 फीट पे वैसा नजर आएगा जो कि एक वयस्क को 40 फीट पे नजर आता है, क्योंकि जितना दूर हम देखते हैं उतनी चीजें हेजी ब्लरी हो जाती हैं, अनक्लियर हो जाती हैं. एक बच्चे का बहुत नजदीक में भी वैसी ही हेजी और अनक्लियर सी नजर जो है होती हैं. एक और बात जो विजुअल एक्विटी में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है दैट इज विजुअल इंटरेस्ट. इन्फेंट्स जो हैं वो ह्यूमन फेसेस के प्रति ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. देयर आर न्यूमरस स्टडीज विच शो कि किस तरीके से बच्चा जो है वो अपनी माँ के चेहरे को देखने में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है एज कंपेयर टू किसी अजनबी के चेहरे में. और ये प्रवृत्ति, ये
हैबिट जो है बच्चे की जन्म के 12 घंटे बाद से ही शुरू हो जाती है. तो so it has been seen that the infants spend more time looking at their mother's face. By 3 months of age, infants match voices to faces. वो आवाज़ों से जो है चेहरे का मिलान कर पाते हैं. मेल फीमेल की आवाज़ों के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं मात्र 3 माह की एज तक आते आते. एंड दे ऑल्सो know how to discriminate between certain ethnic groups. Say for example Asians को अलग मानना शुरू कर देते हैं, यूरोपियंस को अलग. So इस तरीके से जो बिल्कुल ही क्लियर कट फेशियल फॉर्मेशन के जो डिफरेंसेस हैं उसमें भी डिस्टिंग्विश करना शुरू कर देते हैं. इफ यू लुक एट द पिक्चर दैट इज गिवन एट बिलो ऑफ द स्लाइड, 1 माह तक बच्चे को जो शक्लें हैं वो इस तरीके से नजर आती. 2 माह में थोड़ी क्लैरिटी, 3 माह में थोड़ी और क्लैरिटी, और 12 महीने आते आते उनकी नज़र जो है वो बिल्कुल एडल्ट्स के समान हो जाती है. सो इस तरीके से उनकी विजुअल एक्विटी जो है वो एकदम ब्लरी हेजी से होकर क्लियर कट कैपेबिलिटीज को अचीव करती है टिल दे रीच देयर फर्स्ट बर्थडे. The second aspect of visual acuity is visual perception is color vision. बच्चे का कलर विजन जो है वो भी धीरे धीरे इम्प्रूव होता है. 4 हफ्ते का होते होते ही इन्फेंट्स जो है वो कलर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट करना का कैपेबिलिटी सीख लेते हैं. 4 हफ्ता मतलब 1 महीने में बच्चा कलर्स में डिफरेंशिएट करना शुरू कर देता है. By 4 months of age they start having color preferences. उन्हें कोई कलर्स अच्छे लगते हैं, कोई ना कम पसंद होते हैं. खासकर बोल्ड कलर्स या सैचुरेटेड कलर्स जैसे कि डार्क ब्लू, डार्क रेड्स इन्हें ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं. ये जो बदलाव है लर्निंग हैविंग द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कलर्स और डेवलपिंग अ प्रेफरेंस फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कलर्स, ये जो कैपेबिलिटी है दिस रिफ्लेक्ट्स मैच्योरेशन. ये परिपक्वता की एक निशानी है. इसके साथ ही एक्सपीरियंस प्लेज अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू डेवलपिंग कलर विजन, बिकॉज जितना ज़्यादा एक बच्चा अलग अलग कलर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जितना ज़्यादा बच्चे का एक्सपोजर अलग अलग कलर्स से होने वाला है, उतनी ही अच्छी उसकी कलर विजन जो है वो डेवलप होने वाली है. आई होप यू रिमेंबर इन सो मेनी क्लासेस वी हैव टॉक्ड अबाउट the more you expose a child to various things, the more circuitry is going to develop inside his brain and the more areas are going to be connected inside his brain. In last class also we discussed about early stimulation, in which we talked about how if you give various experiences to your child, the more unused areas of his brain are going to be connected together and he will be able to use those areas in later years of his or her life. So color vision also depends on the child's experience. Then we have a very interesting term called perceptual constancy. Constancy constant शब्द से बना है, constant शब्द. So perceptual constancy basically का अर्थ होता है कि for example आपके जस्ट सामने, नजर के सामने एक बाइसिकल खड़ी है और कुछ दूरी पर एक कार खड़ी है. अब साइंटिफिकली आपको जो पास है वो चीज बड़ी लगती है और जो दूर है वो चीज छोटी नजर आती है. बट क्या आप उस समय ये मान लेते हैं कि बाइसिकल कार से बड़ी होती है? नो, बिकॉज इन योर माइंड आपका परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी डेवलप हो चुकी है कि आपको जो नजर आ रहा है उसके बावजूद आपका परसेप्शन कांस्टेंट है कि ऑल्दो मुझे बाइसिकल जो मेरे पास है, जो ज्यादा पास खड़ी है, और कार जो ज्यादा दूर खड़े होने की वजह से छोटी नजर आ रही है, पर मेरे दिमाग में कार हमेशा साइकिल से बड़ी ही होती है. दैट इज परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. मतलब कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको चीजें कैसी नजर आ रही हैं आपके विजन की वजह से, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट आपका परसेप्शन जो है उन चीजों को लेकर बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है. साइकिल बड़ी नजर आ जाने से कार से बड़ी नहीं हो जाती. वैसे ही एक बच्चा जो है
शुरुआत में परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी डेवलप नहीं कर पाता। हर बार वो जब किसी ऑब्जेक्ट को दूर देखते हैं तो उनको लगता है वो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में छोटा ही है। वो अभी तक इस कैपेबिलिटी को डेवलप नहीं कर पाए हैं कि दूरी में ऑब्जेक्ट्स छोटे नजर आते हैं जबकि एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं। सो परसेप्चुअल एबिलिटी का डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे जो है डेवलप होता है और ये दो कैटेगरीज में डेवलप होता है। फर्स्ट वन इज साइज कॉन्स्टेंसी एंड द सेकेंड वन इज शेप कॉन्स्टेंसी। हमने साइज कॉन्स्टेंसी का एग्जाम्पल लिया कि बाइक कार से पास में है तो बाइक बड़ी नजर आ रही है, कार छोटी नजर आ रही है, बट हमें दिमाग में ये पता है कि कोई बात नहीं, कार फिर भी बाइक से बड़ी होती है। इन केस ऑफ that is the example of size constancy, which is the recognition that an object remains the same even though the retinal image of the object changes you to move toward or away from the object. आपका visual process जो है उस चीज को छोटा बड़ा दिखा सकता है, बट आपका perception constant रहता है। जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आंखों को छोटा नजर आएगा, जितना पास होगा उतना ही बड़ा नजर आएगा। सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी। ये ग्रेजुअली बच्चों में डेवलप होता है। 3 माह तक के बच्चों ने भी साइज कॉन्स्टेंसी दिखाई है, दर्शाई है। हाउएवर एट 3 months ऑफ एज ये एबिलिटी पूरी तरीके से बच्चों में डेवलप नहीं हो जाती। 10 से 11 साल के बच्चे तक साइज कॉन्स्टेंसी जो है फुल ब्लोन तरीके से, पूरी तरीके से ये कैपेबिलिटी बच्चों में डेवलप होती है। The second type of perceptual constancy is shape constancy. ये एक ऐसा एबिलिटी है जिसमें हम ये समझ पाते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सेम ही रहेगा, चाहे उसको आप किसी भी एंगल से देख लीजिए। यानी हमारे दिमाग की ये क्षमता जो कि एक कार को आगे से तो कार समझते हैं और लेफ्ट से भी देखेंगे तो उसको कार ही बोलेंगे और पीछे से देखेंगे तो भी उसको कार ही बोलेंगे। सो आप किसी भी एंगल से उस ऑब्जेक्ट को देखिए, आपके दिमाग में उसका शेप कांस्टेंट रहेगा। अपने आसपास कमरे में देखिए, आप कई सारी चीजें देखेंगे जैसे टेबल्स, चेयर्स। अगर आप खड़े होकर कमरे में घूमे तो आप उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग साइड्स और एंगल्स से देखेंगे। अब आपकी नजरें तो उस ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल से ही देख रही हैं, बाकी सारा जो एंगल है वो अभी आप नहीं देख पा रहे हैं, पर आप अभी भी टेबल को टेबल ही जानेंगे, कुर्सी को कुर्सी ही जानेंगे, चाहे आपको उसको कितना भी अलग अलग एंगल से आप उसे देख लें। दैट इज शेप कॉन्स्टेंसी। डू इन्फेंट्स हैव शेप कॉन्स्टेंसी? जैसे कि साइज कॉन्स्टेंसी में होता है, 3 माह के बच्चे शेप कॉन्स्टेंसी भी दर्शाना शुरू करते हैं, बट इतना ज्यादा अच्छी तरीके से वो उसको नहीं समझ पाते। हाउएवर इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट्स खासकर जो होते हैं जैसे कि टेढ़े मेढ़े प्लेन्स या ट्रक्स, उनको समझने में उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। कमिंग टू द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ विजुअल परसेप्शन, परसेप्शन ऑफ ऑक्लूडेड ऑब्जेक्ट्स। ऑक्लूडेड मतलब छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स का कैसे परसीव करते हैं बच्चे। अभी आप अपने आसपास दोबारा देखिए, आप कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे जिनका कुछ हिस्सा किसी चीज के पीछे छुपा हुआ है। टेबल के पीछे कुर्सी थोड़ी छुपी हुई नजर आ सकती है, या फिर स्टूल के पीछे दीवार थोड़ी छुपी हुई नजर आ सकती है, कंप्यूटर के पीछे कुछ और चीज, या फिर एक पेड़ के पीछे कोई गाड़ी पार्क नजर आती है। अब छोटे बच्चे इन छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स को किस तरीके से परसीव करते हैं? पहले 2 माह में, जन्म के पहले 2 माह में बच्चे छुपे हुए चीजों को कंप्लीट नहीं देख पाते। उन्हें जो नजर आ रहा है उनके लिए ऑब्जेक्ट वैसा ही होता है। उन्हें अगर कुर्सी का आधा हिस्सा नजर आ रहा है तो जो नजर आ रहा है उनके लिए कुर्सी वही है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ 2 months ऑफ एज बच्चों में धीरे धीरे ये छिपे हुए ऑब्जेक्ट्स को भी पूर्ण रूप से परसीव करने की क्षमता 2 माह तक आते आते डेवलप होना शुरू होती है। ये परसेप्चुअल कंप्लीशन जो है, चाहे परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी हो,
छिपे हुए सब्जेक्ट्स को, ऑब्जेक्ट्स को पूरी तरीके से देखने की क्षमता, कलर विजन, एक्विटी, ये और भी कैसे कैसे डेवलप हो सकती हैं? लर्निंग, एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशन से। जितना ज़्यादा एक्सप्लोर बच्चा करेगा, जितना ज़्यादा छुपी हुई चीज़ों को ढूंढेगा, अलग अलग चीज़ें जो अचानक किसी आपकी बॉल अगर किसी चेयर के पीछे चली गई है तो ये समझ पाना कि बॉल चेयर के पीछे अभी भी हो सकती है। सो ये किस्म की कैपेबिलिटीज, खासकर परसेप्चुअल विजुअल परसेप्शन जो है, वो एक्सपीरियंस और एक्सप्लोरेशन की मदद से बच्चा और भी ज़्यादा डेवलप कर सकता है। Moving on to the third part of today's lecture and the final part is other senses. So far हमने अभी तक सिर्फ visual perception के बारे में जाना है। अब हम सुनने की क्षमता, टेस्ट, टच एंड स्मेल आदि के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके से हमारी वो ब्लैंक स्लेट सा बच्चा जो है वो सुनना शुरू करता है, टेस्ट कैसे उसको आता है, कैसे उसको खुशबू मिलती है, that we are going to learn about. So hearing. हियरिंग पहले 2 महीनों में, खासकर अभी जब तक बच्चा जन्मा भी नहीं है, अपनी फीटल स्टेज के लास्ट के 2 महीनों में, फीटल स्टेज के लास्ट के 2 महीनों में बच्चा जब माता के गर्भ में होता है, उस समय भी वो अपनी माँ की आवाज़, म्यूज़िक, आसपास की आवाज़ें, वो सब सुन पाता है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसके अंदर ये देखा गया कि बच्चे वो कहानी सुनने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं या फिर वो गाने सुनकर ज़्यादा सूद आउट हो जाते हैं, आराम फील करते हैं या रिलैक्स करते हैं, जो गाने माँ ने बच्चे को गर्भ में धारण करते हुए सुनाए थे। ऐसी स्टडी की गई जिसमें ये पाया गया कि बच्चे जो सुने हुए गाने जब उन्होंने गर्भ में ही सुन लिए थे, उन गानों को लेकर वो जन्म के पश्चात ज़्यादा आसानी से रिलैक्स करते हैं। पर इन्फेंसी या फिर नवजात शिशु के लिए हियरिंग का जो परसेप्शन है वो आवाज़ की लाउडनेस, पिच और लोकलाइजेशन पे डिपेंड करता है। लाउडनेस मतलब जन्म के पश्चात इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बच्चे सॉफ्ट साउंड्स को नहीं सुन पाते, जो वयस्क आराम से सुन लेते हैं, मध्यम आवाज में बोली गई चीजों को नहीं सुन पाते। उन्हें सुनने के लिए थोड़ी लाउड आवाज जरूरी होती है, तभी जाकर बच्चे जो हैं वो सुन पाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हियरिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी बच्चे की जन्म के पश्चात और ज्यादा सुधरती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वयस्क इंसान के 4 से 5 फुट की दूरी पर यदि कुछ फुसफुसाया गया है, विस्पर किया गया है, तो एडल्ट सुन सकता है। पर न्यू बॉर्न को बहुत ही पास जाके अगर आप फुसफुसाएंगे तो ही वो सुन पाएगा, अदरवाइज थोड़ी दूरी पर कम आवाज में बच्चे नहीं सुन पाते। द सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ हियरिंग इज पिच। बच्चे अलग अलग पिच की आवाजों को लेकर इतने सेंसिटिव नहीं होते जैसे कि वयस्क होते हैं। पिच इज बेसिकली द परसेप्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड। बहुत ही हाई पिच्ड आवाज भी होती है, कुछ थोड़ी सी भारी कम पिच की आवाजें होती है। जो लो पिच्ड साउंड्स हैं उनको लेकर बच्चे थोड़े कम सेंसिटिव होते हैं। हाई पिच की आवाजें बच्चे ज्यादा आसानी से सुन लेते हैं और उनको लेकर ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं। 2 साल की उम्र तक आते हुए बच्चे जो हैं वो काफी हद तक इम्प्रूव कर लेते हैं अपनी एबिलिटी को टू डिस्टिंग्विश बिटवीन साउंड्स एंड डिफरेंट पिचेस। द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ हियरिंग इज लोकलाइजेशन। न्यूबॉर्न्स जो हैं वो लोकेशन को भी समझने की कोशिश करते हैं 6 माह तक की उम्र आते। दे आर मोर प्रोफिशिएंट एट लोकलाइजिंग साउंड्स एट 6 months ऑफ एज, और कहाँ से आवाज जनरेट हो रही है इसको समझने की क्षमता भी इनमें काफी बढ़ जाती है। ये 6 माह तक बढ़ना शुरू होता है और ये 2 साल तक की उम्र तक होते होते काफी इम्प्रूव हो जाती है। सो लोकलाइजेशन का अर्थ है कि आवाज कहाँ से जनरेट हो रही है, ओरिजिन या लोकेशन ऑफ द साउंड के बारे में भी बच्चे एक्सप्लोर करना सीखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आफ्टर बर्थ। Coming to the second sensory organ or the sense, that is smell. Newborns have the ability to differentiate between odors. अलग अलग सुगंधों या गंधों में
डिफरेंशिएट करने की क्षमता नवजात शिशु में होती है। ऐसा देखा गया है कि अच्छी खुशबू जैसे वनीला, स्ट्रॉबेरी को लेकर बच्चे जो है वो पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से ये बताते हैं कि उन्हें ये गंध अच्छी लगी, पर सड़े हुए अंडे या फिर मछली की स्मेल देने पर बच्चे अपनी शक्ल बिगाड़ लेते हैं, जिससे यह कंक्लूड होता है कि नवजात शिशुओं में भी अच्छे और बुरे या पसंद या नापसंद के गंधों में डिफरेंशिएट करने की क्षमता होती है। हालांकि ये क्षमता डेवलप होने के लिए उन्हें कुछ दिन का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। राइट अवे वो अपनी माँ की गंध को नहीं पहचानते, तो उन्हें कुछ दिन लगते हैं जब वो ये डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो गंध के माध्यम से भी पता लगा पाते हैं कि वो अभी अपनी माँ की गोद में है या किसी और की गोद में। सो दैट इज अबाउट द सेंस ऑफ स्मेल। टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ टच एंड पेन, क्या नवजात शिशु टच को रिस्पॉन्ड कर पाते हैं? क्या वो पेन फील करते हैं? यस, न्यूबॉर्न्स डू रिस्पॉन्ड टू टच। जब हम उनके गाल को हाथ लगाएं तो वो आपकी तरफ मुंह करेंगे। जब उनके होठों को when their lips are touched, they produce sucking movements. So yes, they do feel touch and they also feel pain, but interestingly they also have some resilience towards pain. Imagine a child is to go through his first vaccination. He will cry his heart out once जब उसे इंजेक्शन लगता है, बट अगर आप उसे सूद करने की कोशिश करें, उसका ध्यान बटाएं, तो वो धीरे धीरे सूद भी हो जाता है और कुछ टाइम में अच्छी गहरी नींद में सो भी जाता है। सो बच्चे पेन फील करते हैं, बट उनमें उसको लेकर कुछ हद तक रेजिलियंस भी होती है। कमिंग टू द लास्ट सेंसरी एबिलिटी, दैट इज टेस्ट। इट वाज सीन कि वेरी इंटरेस्टिंगली छोटे बच्चों में टेस्ट की सेंसिटिविटी जन्म से पहले भी प्रेजेंट होती है। एक स्टडी के तहत एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा मां के गर्भ में रह रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड में सैकरिन ऐड करने पर देखा गया कि जन्म से जस्ट पहले जो फुल टर्म फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड को स्वैलो ज्यादा कर रहा था, ज्यादा इनटेक कर रहा था, इंजेस्ट कर रहा था। So yes, they do know what is sweet and what is not. Even after 2 hours of age, सिर्फ जन्म के 2 घंटे के अंदर अंदर भी एक स्टडी में ये देखा गया कि बेबीज ने टेस्ट के आधार पर, स्वीट टेस्ट में कुछ अलग एक्सप्रेशंस दिए और खट्टा और कड़वा टेस्ट दिया गया। जब उन्हें कुछ दिया गया टेस्ट करने को, तब उन्होंने अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से ये बताया कि वो किस तरीके से उनमें टेस्ट को पहचानने की क्षमता भी अवेलेबल होती है। So with this we come to an end of today's lecture. आज हमने न्यूबॉर्न्स के सेंसरी और परसेप्चुअल एबिलिटीज के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने शुरुआत की perceptual abilities से। what is perception, what is sensation? We learned that sensation is just about the senses, about taking in the information through our sensory organs, and perception is about interpretation of the information that we have taken in through our sensory organs. So that is what we learned today. Apart from that, we also came to know about how the visual perception develops, how the interesting concepts of perceptual constancy and perception of occluded objects are gained by an infant just months after his or her birth. Then we also came to know that how infants know about tastes even before birth, while they are at the fetal stage, and they have the ability to understand touch, to see, to hear, to taste, and to feel pain. So that is all about today's class. If you want the notes on the topic, do check the description box below. Thank you all very much.